आप सभी को वेद प्रकाश बेनीवाल की तरफ से नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बची हुई जानकारी देना चाहूँगा और उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना चाहूँगा जो हमारा को नीट FMGE का जो वीडियो हमने बनाया था, FMG और नीट PG का जो परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल का था, उसमें काफ़ी सारे हमारे को कमेंट्स भी थे, कुछ लोगों के व्हाट्सएप पर भी मैसेज थे, तो मैं उसका रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू करना चाहूँगा। लेकिन रिसेंटली ये वीडियो बनाने से पहले कुछ कमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त ने लिखा है, जिनका नाम है हिमांशु रंजन जी। उन्होंने लिखा है, वाई शुड वी अलाउ दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू सिक्योर ए सीट इन MBBS इन इंडिया व्हेन यू रन आउट ऑफ कंट्री फॉर एजुकेशन, सर्व देम ओनली, जस्ट एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट हैव द कैलिबर टू बिकम ए डॉक्टर हियर इन इंडिया। दिस विल बी ए स्लैप ऑन द फेस ऑफ द स्टूडेंट हु वर्क सो हार्ड टू गेट इनटू मेडिकल कॉलेजेस। सो माय beloved friend Himanshu, I would like to tell you that there are only 70,000 seats were there last year, and these students, when they went to study medical in abroad in 2014 and 15, that time there were hardly 55,000 seats were there. If you talk about today's scenario, then almost 15 lakh students, 1.5 million students has applied for NEET exam in 2020, whereas we have almost 80,055 seats in 529 colleges and universities. Out of these 80,000 seats, there would be hardly 40,000 seats in government medical institutions where the fees starts from 35,000 and it goes up to 2 lakh rupees, which is quite normal, and an ordinary family and a poor family can also afford if the student is brilliant. Apart from this, if you talk about the rest seats which are in private institutions or private colleges, where the fees starts from approx 8 lakh rupees per annum. Hostel fees and the other charges are separate. If you assume 10 lakh rupees per year, then also it comes minimum 50 lakh rupees, and the game starts from here. So let me tell you, as I can pretend you are not a medico, either you have anyone in your family who is connected with the medical stream, and maybe you would be an engineer or maybe you would be an management student. There are n number of management seats, n number of engineering seats available in India, mostly in all the states. I'm not saying that engineering and management is not good. My concern is something different, and I'm trying to draw your attention towards that. Where I'm from Jaipur, and in Rajasthan there are 50,000 seats as of now, out of which almost 30,000 seats are vacant, and the fees is very reasonable, like 50,000 rupees or 60,000 rupees per annum, hardly 30,000 rupees for the dormitory and hostel. So if it comes on engineering, everyone who pass +2 with the mathematics and who qualifies, he can get seats easily. I'm not telling that these engineers would be comparing with the IITians. I'm not telling that management students we are comparing with IIM. There is a little different scenario. So just I'm coming on the point, and I would like to ask you that how you will grade the qualified student. Either you will grade them with their percentage, either you will grade them the capability of paying the funds which their parents can afford. So let's start in this video. So very first मैं बात करना चाहूँगा नेगेटिव मार्किंग, जो बहुत सारे कमेंट्स में था कि नीट PG में नेगेटिव मार्किंग होती है। नीट PG में 300 क्वेश्चंस आते हैं, हर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन का 1 मार्क कट होता है। सेम वे में यदि आप FMG में भी नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो मैं आपको फ़र्क बताऊंगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल में कितना फ़र्क आएगा। आप FMG में सेम सिनारियो रख लीजिए, या इधर आप 300 मार्क्स का जो एग्ज़ाम है उसको 1 मार्क कर लीजिए और 4 गलत करने पे डिडक्ट कर लीजिए। लेकिन परसेंटेज और परसेंटाइल बेस का जो सबसे बड़ा फिगर है उसमें फ़र्क क्या है वो बता देता हूँ आपको, कि परसेंटेज बेस में हो सकता है 100 स्टूडेंट हों और 50% हमने पासिंग मार्क्स रखे हों, हो सकता है 20 बच्चे पास हों, 80 फेल हो जाएं। लेकिन यदि परसेंटाइल बेस हमने किया है तो उसमें भले ही जो टॉपर स्टूडेंट है उसके 52 मार्क्स आए हों, और यदि हम 50 परसेंटाइल की बात करेंगे तो आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स तो पास होंगे ही होंगे, उनको कोई फेल इस मार्किंग सिस्टम से नहीं कर सकता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं दूसरे कम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की। इसकी डेफिनेशन जहाँ तक मैंने देखी है, जब आप नीट UG कर रहे हैं तो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, वहाँ भी परसेंटाइल बेस्ड है। यानी कि यदि आप परसेंटाइल बेस्ड में आउट ऑफ 720 107 लाते हैं, यानी कि ये हो गया आपका 40 परसेंटाइल। तो आप इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं
कि आप इंडिया के कॉलेज से MBBS कर सकते हैं, राइट। लास्ट ईयर मैंने एक स्टूडेंट का एडमिशन किया था जिसका नीट में 554 था। उसको प्राइवेट कॉलेज इंडिया में मिल रही थी, गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं मिली। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि 10 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से लगभग 50 लाख रुपए वो नहीं पे कर सकते थे, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था अदर देन अब्रॉड। अब यदि ये स्टूडेंट अब्रॉड जाती है, 25 या 30 लाख में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, इंडिया आती है, तो क्या इसने कोई गुनाह किया है? वेयर सेम टाइम पे ये 107 वाला ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स की कैपेसिटी है 1 करोड़ तक पे करने की और उनको सीट मिल जाती है इंडिया में, तो आप इसको क्या बोलेंगे और इसको आप क्या बोलेंगे, ये आप थोड़ा सा आप खुद से तय कीजिए। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो यहाँ 14,10,754 स्टूडेंट थे जो अपीयर हुए, जिसमें से 701 to 134 जो क्राइटेरिया था जनरल का, उसमें 7,04,335 स्टूडेंट्स आए और जो रिजर्व कैटेगरी थी उसके 92,707 स्टूडेंट थे। इन टोटल इस फिगर में से 7,97,042 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। क्यों? क्योंकि ये परसेंटाइल है, ठीक है, और ये परसेंटेज में 56% स्टूडेंट पास हुए हैं। सेम सिनारियो में यदि हम इसको परसेंटाइल बेस्ड नहीं करके, और जैसा कि काफ़ी लोग कहते हैं कि क्वालिफाइंग और कम्पिटिटिव, तो आप उसको भी कम्पिटिटिव में परसेंटेज बेस्ड कैलकुलेट कीजिए, यानी कि 50% वाला स्टूडेंट ही एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, यानी कि 720 में से 360 मार्क्स आने चाहिए। उस केस में क्या होगा, ये जो फिगर्स हैं इनमें ड्रास्टिकल चेंजेस आएंगे, यानी कि हो सकता है 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स क्वालिफाई ना हो। तो उसके लिए FM जो नीट UG के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैंने डेटा अलग से कलेक्ट किया है। वो डेटा के ऊपर एक एनालिटिकल वीडियो हम इसके आगे का वीडियो हम लोग बनाएंगे। तब तक मैं इसके मार्फत आपको एक समझाना चाहूँगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो ये स्टूडेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो आपके हिसाब से अब्रॉड जाके उसको नहीं पढ़ना चाहिए। वेरस ये स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स 1 करोड़ रुपए पे कर सकते हैं वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है और डॉक्टर बनने का अधिकार है। एक चीज़ मैं आपको और पूछना चाहूँगा, भले ये स्टूडेंट हो या ये स्टूडेंट हो, दोनों ने नीट क्वालिफाई किया, दैट मीन्स ही इज़ एलिजिबल टू स्टडी मेडिकल इन इंडिया एंड अब्रॉड। But how you are going to justify that whether he is studied well or not, whether he is a qualified doctor or not, and whether he should be awarded a degree of doctorate or not? Abroad जो student गया है, he will write FMG exam, he will score 150 as on percentage basis. Whereas these brilliant student and rich student, they do not need to write any exam as of now. So it comes on completely financial budgets. Brain doesn't matter, and why they need to make it percentile basis, I tell you the reason behind that as well. In 2019 there were almost 70,150 seats, whereas almost for this data was there, like we can say out of 10 1 student can get the seats. इसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में चले गए उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो प्राइवेट सीट्स में तभी एडमिशन ले सकते हैं जब 50 लाख से ऊपर का बजट हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ नीट PG, यानी कि हमारे स्पेशलिस्ट MD MS की। नीट PG में 1,60,000 1,60,888 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम अपेयर किया। सीट्स थी 34,091, जिसमें से ऑलमोस्ट 50% सीट्स होंगी गवर्नमेंट में, 50% सीट्स होंगी प्राइवेट में। इसमें 89,549 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं, क्योंकि 50 परसेंटाइल है जनरल के लिए, 40 परसेंटाइल है रिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि हम इसको परसेंटेज करें तो ऑलमोस्ट 55% स्टूडेंट इसमें भी पास हुए हैं। यदि मैं इसको 50 परसेंटाइल पे कैलकुलेट करूँगा तो फिगर्स आएंगे 80,444। सेम वे में अब जब नीट PG की जो कट ऑफ है वो रिवाइज़ की जा चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से, तो आप सोचिएगा कि जब तक ये कट ऑफ नहीं आई उससे पहले सिर्फ इतने स्टूडेंट एलिजिबल थे, जबकि सीट्स इतनी थी। इसमें से जो भी 18 या 20,000 सीटें हैं, 18,000 20,000 जो सीट्स हैं गवर्नमेंट की वो फिल हो गई है। उसके बाद जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं उनकी फ़ीस 2 करोड़ रुपए लग जाती है। तो शायद काफ़ी स्टूडेंट जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने दोबारा से नीट PG को तैयारी करने की कोशिश की। मीनवाइल जो सीट्स वैकेंट रह गई उनकी तो फीस इंस्टीट्यूशंस को और कॉलेजेस को चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू आना है। वो रेवेन्यू कैसे आएगा? तो उन्होंने क्या किया, 30 परसेंटाइल रिवाइज़ कर दिया। रातों रात कुछ डॉक्टर्स क्वालिफाई हो गए नीट PG पढ़ने के लिए। तो वो मैं क्राइटेरिया देखता हूँ, यदि मैं 160, ये फिगर है जब सबसे पहले इनकी नीट की कट ऑफ आई है तब। इसके बाद 30 परसेंटाइल आने के बाद कट ऑफ में चेंजेस होने के बाद कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए ये डेटा
आप में से किसी के पास नहीं होगा। मैंने भी शायद कहीं से कोशिश करके निकालने की कोशिश की, 30% का मैंने एक रफली आइडिया लेके इसको लिखा है। 48,270 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 30 परसेंटाइल से नीचे हैं। मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ, रिजर्व कैटेगरी मैंने कैलकुलेट नहीं की है। अब 16888 में से मैं 48,270 निकालता हूँ तो 1,12,618 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 30 परसेंटाइल से अबोव हैं। मीनवाइल ऑलमोस्ट 10,000 स्टूडेंट मैंने और इसमें ऐड किए हैं जो 40 परसेंटाइल जो थे उसको भी 20 परसेंटाइल हमने किया है। तो 50 परसेंटाइल पे डेटा ये आ रहा था, 40 परसेंटाइल पे डेटा ये आ रहा था। तो जो 9,000 ये है और मैंने 1,000 और ऐड करके सिर्फ 10,000 इसमें मेंशन किया है ताकि हम 40 परसेंटाइल तक जो क्राइटेरिया था उसको 20 परसेंटाइल तक खींच के लेके आए। अब हमारे पास जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी दोनों के नीट पीजी वाले, वो 1,22,618 हैं। मैं 1,22,618 में से जो पहले क्वालिफाई हुए थे कट ऑफ रिवाइज होने से पहले 89,549 को माइनस करूँगा तो हमारे पास एक ओवरनाइट 33,069 डॉक्टर्स ऐसे हैं जो रातों रात क्वालिफाई हो जाते हैं। क्वालिटी का ध्यान नहीं है। वो क्वालिफाई क्यों हो जाते हैं? क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की सीट खाली हैं जिनमें मिनिमम 50 लाख से शुरुआत होकर 2 करोड़ रुपए तक की अमाउंट पर सीट पे जानी ही जानी है। तो क्या आप इनको क्वालिफाइड बोलेंगे? क्या आप इनको क्वालिफाइड बोलेंगे? ये जो एफएमजीज जो हैं ये 6 साल या 5 साल घर से दूर रह के पढ़ते हैं क्योंकि इनको यहाँ सीट नहीं मिलती। उसका रीज़न हो सकता है ये भी हो, कुछ भी रीज़न उसका हो सकता है। अब्रॉड गए, पढ़े, रिटर्न आए, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम लिखा। मेरा कहना और इन सभी का कहना सिर्फ इतना है कि जब नीट पीजी, नीट यूजी ये सब जब परसेंटाइल बेस है तो आप एफएमजी को परसेंटाइल बेस क्यों नहीं करते? क्योंकि शायद एफएमजी के स्टूडेंट से किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। पास होते हो तो ठीक है, नहीं होते तो ठीक है। लास्ट ईयर 5,500 फीस थी एफएमजी की, इस बार 6,500 फीस है। जो पास हो गया ठीक है, क्वालिफाई हो जाओ, डिग्री ले जाओ, जितना पैसा आपने दिया था उसके बदले हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। लेकिन इनका बेनिफिट क्या है? कॉलेज की सीट्स फिल होंगी। इनका बेनिफिट क्या है? कॉलेज की सीट्स फिल होंगी। यदि आप यहाँ भी परसेंटेज बेस कर दें, यहाँ भी परसेंटेज बेस कर दें तो मैं गारंटी लेता हूँ 50% से ज़्यादा सीट्स प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की वैकेंट रहेंगी। क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे होंगे उनको शायद दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। यदि इस वीडियो में कोई मैथमेटिकल एरर है तो मैथ्स का मैं काफ़ी वीक स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरा ध्यान उस तरफ दिलाएं और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा मैं अपने रंजन जी से ये भी कहना चाहूँगा कि रंजन जी ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये सिर्फ जस्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि जब सब कुछ परसेंटाइल बेस हो रहा है तो हमारे साथ परसेंटेज का गेम क्यों खेला जा रहा है। यदि मैं बात करूं तो 43,000 के अप्रोक्स स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट 4 एफएमजी के अटैम्प्ट दिए हैं, 2018 जून, 2018 दिसंबर, जून 19 एंड दिसंबर 2020। उनमें से पास हुए हैं 10,000 के अप्रोक्स, जिनका किसी का भी परसेंटाइल 71 परसेंटाइल से कम नहीं है। यदि उसको 50 परसेंटाइल यदि हम करते हैं तो ऑलमोस्ट 21,000 के अप्रोक्स डॉक्टर्स पास होकर निकलेंगे जहाँ रिजर्वेशन नहीं है। आप उसमें नेगेटिव मार्किंग भी करते हैं तो भी 50% स्टूडेंट्स परसेंटाइल बेस पे आगे प्रमोट होंगे ही। क्यों हमारे जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनमें परसेंटाइल बेस नहीं है? क्यों हमारे में परसेंटेज बेस है? परसेंटाइल बेस इसलिए नहीं है क्योंकि आप कितना भी टॉप कीजिए, यदि आप आउट ऑफ 100 90 मार्क्स भी ले आए और यदि कोई स्टूडेंट जो बिल्कुल पढ़ने में कम है वो 70 मार्क्स भी ले आया परसेंटाइल सिस्टम में, तो 50% बच्चे तो ऑटोमेटिक फेल हो जाएंगे। परसेंटेज बेस में ये है कि ऑलमोस्ट जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा वो पास हो जाता है। ये स्कूल सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, कॉम्पिटिटिव या क्वालिफाइंग एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा। हमारे इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।